Yes, so everyone, good afternoon. As you keep on joining, continue writing your name in the chat box so that I'm aware who's in the class and who's not yet. And accordingly, I will start this basic topic of models, which is Unit 10 in your book. And it also discusses some very basic models. That is why I have given the title as Models for Beginners, because it is models which refer to students or people who use the very basic models. Okay, the models which are like may, can, might, all these. Okay, so all these models are included in this. Okay, so some students are already here. Great. So maximum students have joined in. Okay. So quickly I will be discussing the letter we did yesterday. Yes, so this is first worksheet that we did. Models क्या होते हैं? Just a introduction to these words. ये ऐसे model verbs होते हैं, ठीक है? ऐसे verbs होते हैं इनफैक्ट जो helping verbs की जगह यूज़ किए जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आपका मेन वर्ब जो है इस सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा. मेन वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन दिस. ओके, सो जैसे कि आप इस सेंटेंस में ही देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन. In the second line it says, I think I can use the excuse that I have a terrible pain in my jaw. She might believe. ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने का मतलब क्या है? आप कैन मॉडल वर्ब है, उसके बाद यूज का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, यूज लगा है विच शोज की मॉडल जो है यहाँ पे हमारा वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और उसके बाद फॉलो कर रही है हमारी मेन वर्ब. सो ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स या ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं एटीट्यूड या मूड, किस विचार से किस मूड के साथ स्पीकर ने वो शब्द कहे हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन हमें पता लगता है इन वर्ड से जो कि हम यूज़ करते हैं. एंड द फर्स्ट वर्कशीट हेयर एज वी हैड डिस्कस्ड, कैन, माइट, मे, कुड, विल, ये सारे वर्ड्स जो इसमें अंडरलाइंड हैं, ऑल दीज वर्ड्स टेल अस दैट these show some probability or some attitude. Okay, we are going to discuss them in the next part. Now, this was the answer written to the previous one, so I have just read what you have written. Okay, you should, because it's an advice, वो advice कर रहे हैं, take rest today, आज rest करना चाहिए. But you must, ठीक है, have told me the truth. ठीक है, ये है जो कि कंपल्शन की तरह से आ रहा है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था. ठीक है, must have told me the truth. You might have come up to me, तुम ऐसा कर सकते थे. ठीक है, and asked me, आकर के मुझसे पूछ सकते थे. I could have said yes, शायद मैं yes भी कह देता. But I believe, ठीक है, पर मैं ये मानता हूँ that you will never stop. It is something to predict future. ठीक है, will is used to predict future. You must try, अब तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए. Then only would you be able, possibility, would possibility के लिए यूज होता है, to win the love and respect of others. So जितने सारे ये underlined words थे वो सारे क्या बता रहे थे? As you can read here, possibilities, permissions, requests. So words like these given in the 8 box are all models, and models are verbs. As I said, they are used to express the mood or attitude of the speaker. और ये helping verbs भी हैं और
हमेशा दूसरी वर्ब्स के साथ यूज की जाती है. सो ऑलवेज देयर आर अदर वर्ब्स दैट फॉलो विद देम. Now there are certain examples that are given. For example, the words which are written in bold, जो ये bold में लिखे गए शब्द हैं, ये can, could, may, might, ये सारे words हैं. It says my mother can speak several regional languages. ठीक है, मेरी mother बहुत सारी regional languages बोल सकती है. Okay? Too much of stress could lead you to a nervous breakdown. Could पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, आई मे गो आउट विथ माई फ्रेंड्स फॉर द वीकेंड. वीकेंड के लिए शायद चांसेस हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में मे आई यूज योर टेलीफोन प्लीज. परमिशन के लिए किसी से परमिशन ले रहे हैं हम फॉर्मली. आई माइट विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टूडे. सो देयर इज अ ब्लीक पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आज मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करूँ यानी मिलने जाऊँ. Okay, so all these are certain examples of these verbs, modal verbs that are given in your book. Then they work different ways in a sentence. अब ऐसा नहीं है बेटा कि एक modal verb है तो उसका एक ही यूज होगा, उसके कई यूजेस भी हो सकते हैं. एक ही modal verb, जैसे आपने may का यूज यहाँ पर ही देखा. अब सेंटेंस थर्ड और फोर्थ में नोटिस करो, modal verb may ही है, पर मे को एक जगह पे हमने यूज किया है पॉसिबिलिटी के लिए, ऐसी चीज जो शायद हो सकती है. ठीक है, और नेक्स्ट में हमने परमिशन लेने के लिए यूज किया है. तो दोनों जगह पे इसका पर्पस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. वर्ड एक ही है बट उसका यूज अलग अलग है. ऐसे ही कुड, ठीक है, और ऐसे ही कैन. तो नेक्स्ट चार्ट के थ्रू हम इनका डिटेल्ड वर्जन में समझते हैं कि इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. हाउएवर दिस इज वेरी बेसिक. इससे एडवांस्ड भी इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, बट राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर क्लास दिस इज इट. और ये सबसे बेसिक मेन यूज होता है. सो इफ एनी लर्नर वांट्स टू नो कि इंग्लिश में इन ग्रामर सेंटेंसेस का बेसिक यूज क्या होता है, इट इज जस्ट दिस. ओके, सो सबसे पहले आप देखो सेंटर में कैन और कुड लिखा हुआ है. कैन और कुड जो हैं ये दिखा रहे हैं. ठीक है, दो तीन पर्पसेस हैं. कैन का जैसे आप यूज करते हैं परमिशन लेनी हो अगर आपको किसी से इनफॉर्मली. अब इसमें दो टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, फॉर्मल इनफॉर्मल. ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या डिफरेंस है? फॉर्मल जब हम किसी के साथ बहुत औपचारिक तौर पे कोई बात करते हैं, और इनफॉर्मल होता है जब हम आम तौर पे किसी जान पहचान वाले से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, ठीक है, बात कर रहे होते हैं. सो दैट्स वन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. किसी अननोन से, स्ट्रेंजर से हम बात करेंगे, किसी एल्डर से बात करेंगे हम, तो वो थोड़ा फॉर्मल रह के करेंगे हमेशा, औपचारिक तौर पे. और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, जो कि किसी जिस तरह से आप फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं उस तरह से, या ब्रदर सिस्टर्स के साथ करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ करते हैं. सो अगर आपने पूछना है, ठीक है, किसी से, कैन आई प्लीज गो एंड वॉश माई हैंड्स? यस यू कैन. ओके, सो फर्स्ट कैन इट्स शोइंग हियर फॉर आस्क के लिए, पूछने के लिए, और परमिशन को ग्रांट करने के लिए इनफॉर्मल मैनर में. फॉर्मल मैनर में नहीं, फॉर्मल में मे यूज होता है. और कुड के लिए, कुड का एक और यूज है कि रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे हमारा सेकेंड सेंटेंस आपने देखा. ठीक है, टू मच ऑफ स्ट्रेस कुड लीड यू टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी आ रही है, जैसे यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस दे रखा है, वर्मास कुड ड्रॉप इन टुडे. ड्रॉप इन टुडे मीन्स दे मे विजिट. ठीक है, सो कुड के, ठीक है, दो यूजेस हैं मेन आपको बता रखे हैं, जो एक है कि रिक्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा है एबिलिटी बताने के लिए या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए. ठीक है, कुड यूज होता है हमेशा पास्ट एबिलिटी में. जब कोई कार्य, कोई चीज़ आप पहले समय में कर सकते थे तो वहाँ कुड यूज होता है. वेयर एज कोई चीज़ जो आप प्रेजेंट में कर सकते हैं उसको आप कैन यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन मूव दिस बॉक्स. ठीक है, आई could move much heavier boxes earlier. Okay, so this is the difference in the use of can and could for ability. एक हमने यूज किया past के लिए could, और can हमने यूज किया present ability के लिए. So can और could का बेटा आपको यूज क्लियर है,
तो आप CL टाइप कर दो so that I do know that you have understood it. And please be quick so that I continue with the next part. Good. Ridhima, Ovia, okay. What about others? Good, good, everyone. And if someone has not been able to understand, you can respond with UN, okay? So that I can explain it again. Uh, who has joined in with the name Gurmail Singh? Can you type in your name? You are asking this word expiration. It means the end of something. ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ के यूज़ के का जो टाइम है, जो समय है, उसका समाप्त होना. That's what expiration means. So quickly let's move to the next, which is may and might. अब may का मैंने आपको पहले ही यूज़ बताया. I will again start clockwise only. So I will starting here to refer or grant permission. ठीक है, कोई परमिशन लेने के लिए या देने के लिए. Yes, you may if it's very urgent. Okay, the question may be, may I go to visit my friend? Okay, yes, you may if it is very urgent. So this could be the answer. ओके, सो परमिशन लेने के लिए या देने के लिए जब आप फॉर्मल मैनर से बात करते हैं. फिर परमिशन के लिए, ठीक है, मे आई यूज योर टेलीफोन प्लीज, बिल्कुल ही फॉर्मली जब आप पूछ रहे हैं किसी से. ओके, लाइकवाइज पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज करते हैं हम. आई मे गो टू द डेंटिस्ट टुडे, ठीक है, शायद हो सकता है जाऊं. ओके, और माइट का यूज जो है ये भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है. यू माइट फॉल सिक इफ यू डू नॉट स्टॉप ईटिंग आउट. ठीक है, अगर तुम बाहर खाना बंद नहीं करोगे तो शायद तुम बीमार पड़ सकते हो. अब यहाँ पे नीचे एक छोटी सी लाइन दे रखी है आपको. इट सेज माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी दैन मे, which means might has a possibility which is much less as compared to may. अब may पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो पॉसिबिलिटी हो गया कि किसी काम के होने या ना होने के चांसेस. ठीक है, कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके होने या ना होने के चांसेस. तो जब हम मे यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी में, तो उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. अगर हम होने की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं होने की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो आई मे गो टू द डेंटिस्ट टुडे, मैं आज डेंटिस्ट को दिखाने जा सकता हूँ. ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है आई माइट विजिट द डेंटिस्ट, माई स्केड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक. ठीक है, सो मैं डेंटिस्ट को विजिट कर सकता हूँ, ऑल्दो मेरा जो स्केड्यूल है, ठीक है, वो बहुत हेक्टिक है, मेरा जो दिन है उसमें बहुत मैं बिजी हूँ, तो शायद ही विजिट कर पाऊँ. ठीक है, सो मे से माइट क्यों चेंज होगा? जब उसमें रीज़न में चेंज आ जाएगा. ठीक है, जब उस किसी भी काम के होने की संभावना कम हो जाएगी. आप ये सोच सकते हैं कि मे में 50% ही चांसेस होते हैं किसी चीज़ के होने के, वेयर एज माइट में हार्डली 20% चांसेस आते हैं. ओके, और जनरली इनसे रिलेटेड कोई ना कोई रीज़न या लॉजिकली कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मेंशन होती है जब आपके पास इस तरह से मॉडल्स आते हैं. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग मे एंड माइट. ओके, now moving to the next page, which is 90th page. Okay, here you have worksheet from another chapter of your English reader. Okay, which is the tale of a tale. Okay, अब यहाँ से है ये छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन लिया गया between P and Swami. Okay, so what does it mean? Okay, it says
कुछ बातें की गई हैं. Hey you who wrote this silly word on the blackboard, I didn't find it out yourself, I'm busy now. Swami says, I don't care, rub it off immediately. And P says, stop shouting, I'm busy studying. ओके, सो उन दोनों में लड़ाई होती है. आपको चैप्टर याद होगा, आई एम श्योर, टेल ऑफ अ टेल, जिसमें इनकी लड़ाई हो जाती है और ये सभी फ्रेंड्स लड़ पड़ते हैं एंड देन हेडमास्टर कम्स एंड पनिशेस देम ऑल. सो अगर यही बात, ये जो गुस्से में इन्होंने बात की, यही गुस्से में की गई बात अगर वो आराम से कर लेते, ठीक है, अगर वो आराम से शांति से कर लेते तो वो बिल्कुल चेंज हो जाती. उसमें मॉडल्स यूज हुए हैं, विच इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, व्हेन स्पोकन पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स प्यार से. एंड जैस्मीन इज आस्किंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, ठीक है, कोई चीज़ जो आपके कर्तव्य से आपकी करनी बनती है. ओके, दैट्स ऑब्लिगेशन. सो स्वामी could have said, could you please tell me who wrote the word tail on the blackboard. So वो प्यार से politely request करके पूछ रहा है, could you, hey you who wrote this silly word, कहने की जगह वो प्यार से कह रहा है कि ये किसने लिखा है. So P भी आंसर कर रहा है, I didn't, ठीक है, why don't you find it out yourself. Swami, I would be pleased if you could rub it off immediately. Okay, so find it out yourself की जगह वो कह रहा है why don't you find it out yourself. So that's a pleasing manner, polite manner of saying it. So Swami again says rub it off immediately की जगह वो भी request करके कह रहा है कि क्या please rub कर दोगे, क्योंकि request करने में क्या है कि कोई भी कभी छोटा नहीं होता. Okay, so in normal situations of life also you should always be polite and not be hurtful and not use hurtful words towards others. Okay, so likewise Swami, if he would have said if you could rub it off immediately, तो शायद उनकी लड़ाई ही नहीं हुई होती. Okay, so P would have answered stop shouting, I am busy studying. ये जो उसका पहला आंसर था, अगर politely आंसर करेगा तो उसका आंसर भी चेंज हो जाता है. If you wouldn't mind please, I am studying now. So he is just making a polite excuse. If you wouldn't mind मतलब कि अगर बुरा नहीं मानो तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं अभी रेस कर सकता. So क्या है, दोनों की बात जो है करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है. ओके, अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. क्लास में मान लो आपको किसी से एक नोटबुक ही लेनी है या आपको घर में किसी से कुछ काम है, ठीक है, आपके पेरेंट्स से, आपके सिबलिंग से, तो आप एकदम से कहें कि अपने सिबलिंग से ही कहना है मुझे अपनी नोटबुक दे दो. ओके, वर्सेस आप प्यार से कहें कि मुझे नोटबुक दे दो प्लीज़. ओके, सो योर वर्ड्स चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन द स्पीकर ऑल्सो चेंजेस. Likewise, this is what the models intend to do. अगर आप models use करेंगे, they are rather polite on the side. There are hardly 2-3 models which are rather threatening or related to will, which is meant to threaten others at times, and then dare to, and some other models like these. Okay, apart from these 2 or 3 models, every model includes a request. So अगर आप model words को use करते हैं in English, they include some requests. Okay, so likewise you should be polite in your behavior. On this note, let's move to the next page, which is page 91. So herein you have to change the statements into polite requests. Okay, so polish my shoes, could you please polish my shoes? Shut the door, can you shut the door? Okay, lend me your notes for a day, could you please? Okay, and the rest of the sentence is added. Iron these shirts. Okay, आपको कहना है तो could you please iron these shirts. So just a polite way of saying changes the impact on the listener for a longer time. So this is the difference here. Likewise, allow me to leave now, could you please allow me to leave now. Okay, तो जो जब इस तरह से हम बोलते हैं तो उसका impact जो है, असर जो है listener पे, वो बिल्कुल बदल जाता है. Moving on to worksheet 3, that all of the signs and you have to read the chart. Okay, and then in worksheet 4 it is mentioned that Rupali is the captain of the sports team. Okay, so worksheet 4th I have moved on to, and I have left the third worksheet to be done by you because it is your sun sign, your forecast for the week, so you have to do it accordingly as is given for Cancerian. Okay, so might, must, इस तरह से कुछ भी
You just have to write according to your sun sign and your date of birth. You have to write something for your own good self. Okay, it is something meant for your self attempt. Now the next which says that Rupali, who has broken several records, अब उसके बारे में और other competitors के बारे में कुछ models use किए हैं. Again, it says at this year's sport meet, DAV Public School beat XYZ School. Many records were broken, but the reigning champions Sujit could not make it to the finals of any of the events. ठीक है, any of the events नेगेटिव में रिप्रेजेंट करता है. हमने some any in the beginning of our practice book हमने रीड किया था. ओके, सो बता रहा है कि वो नहीं कर सका. इट सीम्स दैट ही माइट हैव मिस्ड मेनी ऑफ हिज प्रैक्टिस लेसन्स. अब इसका रीज़न भी आपको दिख रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि आपको जो 8 बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल इन होना चाहिए. सो कुंट यहाँ पे यूज़ होगा. ओके, सीम्स दैट ही माइट हैव मिस्ड मेनी ऑफ हिज प्रैक्टिस लेसन्स. माइट हैव मिस्ड, शायद ऐसा हुआ होगा, ब्लीक पॉसिबिलिटी है, कोई कह रहा है. His coach thinks that he dash have given a better performance if he had got more time. So उसकी past ability की बात हो रही है अब कि वो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था अगर उसे और टाइम मिलता. अब वो रेस्ट करेगा 2 months के लिए. इज गोइंग टू रेस्ट फॉर 2 months. द टीम कैप्टन मनोज सिंगल मे टेक हिज प्लेस इन द मीन वाइल. ठीक है, वो शायद ऐसा प्लेस ले सकते हैं कि अब वो रेस्ट करेंगे, सो ऑब्वियसली समबडी इज गोइंग टू कम. सो मे हमने यूज़ किया है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है. ओके, so that's how we have used all these modal verbs in these sentences according to the change in the sentences. या पूरा पैराग्राफ आप पहले ब्लैंक से पढ़ें और उसको फिर अटेम्प्ट करें. Okay, as was assigned to you yesterday. Now moving on to the next page, which is an exercise which is supposed to be done by you only. Okay, now this again talks about using models instead of नॉर्मल स्टेटमेंट्स. सो सभी स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स के साथ आपको मॉडल वर्ब दिया गया है और आपको उसे करना है. पर बेटा यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको भी 5th स्टैंडर्ड तक तो स्टेटमेंट के साथ में मॉडल वर्ब दी जा रही है, बट नेक्स्ट क्लास एंड ऑनवर्ड्स यू वॉन्ट बी गेटिंग इट लाइक दिस. वहाँ पे चेंज होता है. ठीक है, कि आपको सिर्फ जो है सेंटेंस दे दिया गया और उसमें जो मॉडल लगना है वो आपको ऑप्शंस के फॉर्म में आ गया. ओके, सो इवन फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट एज वेल. सो इस तरह से आपको ऑप्शन के फॉर्म में आएगा, तो आपको ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेबल है वो फिल करना होगा. एंड एज यू मूव अहेड इन योर सीनियर क्लासेस, 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज इनफ लग रहे होते हैं, तो उनका डिफरेंस भी समझना आना चाहिए. तो आप इनको इस तरह से प्रैक्टिस करो कि आपको ये बेसिक 4 जो मॉडल्स हमने आज किए हैं ये एकदम क्लियरली समझ में आ जाए, सो दैट ऑन मंडे व्हेन वी डू द नेक्स्ट सेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ देम एज वेल. ओके, और प्रैक्टिस द रेस्ट ऑफ देम ऑल्सो बिकॉज दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. कुछ मोस्ट कॉमन मॉडल्स आपके अभी यूज़ हो रहे हैं और जो है नेक्स्ट मॉडल भी हमारे काफ़ी यूज़ होते हैं, बट देन दे विल कम टू यू लेटर. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस एक्सरसाइज नाउ, एज जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हो, टेक योर फीट ऑफ माई चेयर कैन. ओके, सो कैन यू टेक ऑफ योर फीट ऑफ माई चेयर प्लीज. लाइकवाइज द सेकेंड वन, ओके, wherein you have to use can. Okay, turn the CD player down, could. Next, could. Again, may. Okay, so words are given and according to the word given in the bracket you need to use it. Okay, I hope you are getting it clearly. Great. On the last page of this unit, 10th chapter, what is given is some information that students share with the school reporter. Okay, so what do you think you will be in 10 years time? 10 साल के समय में तुम क्या होगे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके बाद क्या करोगे? Okay, as you can see in this picture, the students are discussing. Okay, maybe me, I may be completing my MBBS or engineering course. I might join politics.
ओके, सो मे माइट जिस चीज़ के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, इसके कम लग रहे हैं. आई कुड गो, पॉसिबिलिटी है. और आई कुड बिकम एन एक्सप्रेस, इसमें पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो क्या शो कर रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स, क्या बनना चाहते हो वो शो कर रहे हैं. अब नेक्स्ट जो बबल आपको गिवन है, आई वॉन्ट बी शेयरिंग दैट विद यू. यू हैव टू राइट वट एवर यू विश टू. ओके, so you can do it there. Okay, so that's how we end this topic, we end this chapter. Now if you have any queries, you can simply ask that query in the comment section. Okay, some students from 7th are also joining in. That's great to see, because these are very basic